ایسا ہوا کہ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت صحن حرم کے اندر نمودار ہوا ہے. اس درخت کی بلندی آسمان تک ہے, اس کی شاخیں مشرق و مغرب کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں. کچھ لوگ درخت کی شاخوں کے ساتھ آگے چمٹ گئے ہیں اور کچھ لوگ کلہاڑا لے کے درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ کلہاڑے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں, آسمان سے وجیح چہرے والے جوان اترتے ہیں, کلہاڑے والے لوگوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پیچھے دھکیلتے ہیں اور پھر اس درخت کی حفاظت کرتے ہیں. امیر قریش فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے بیدار ہوا. جب بیدار ہوا نا تو میرے زلفیں بکھری ہوئی تھی, کندھوں پہ کمبل لٹکا ہوا تھا. میں کہنا کے پاس گیا, اس نے کہا امیر قریش کیا بات ہے, پریشان دکھائی دیتے ہو؟ میں نے کہا میں نے خواب ایسا دیکھا کہ شہر حرم کے اندر نمودار درخت ہوا, اس کی بلندی آسمان تک, شاخیں مشرق و مغرب میں, جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں. کچھ لوگ شاخوں سے چمٹ گئے, کچھ کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ اس کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. کہتے جب یہ خواب سنائی نا تو کہنا کا رنگ فک ہونے لگا. اس نے کہا عبد المطلب اگر تو سچ کہتا ہے تو میں تجھے بشارت ہو, آج قریب تیری اولاد سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو نیا دین لے کر آئے گا اور اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز صحن حرم سے کرے گا. اس کے دین کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور جو تم نے دیکھا ہے اس کی بلندی آسمان تک ہے. کہا عبد المطلب مبارک ہو ورفعنا اللہ کا ذکر کر, اس کا ذکر زمین میں نہیں بلکہ عرشوں میں بھی تذکرہ اسی پیارے کا کیا جائے گا. اگر آپ کو فرصت ملے تو بریلی سے میرے امام کی آج بھی آواز آتی ہے, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان, جدھر بھی جاؤ گے تذکرہ میرے رسول کا تمہیں ملے گا. کہا عبد المطلب اس کا ذکر زمین میں نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی کیا جائے گا, اور جو تم نے دیکھا اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی. کہا اس کی حکومت مشرق و مغرب میں ہوگی, شمال و جنوب میں اسی کی عظمت کے جھنڈے لہرائے جائیں گے. اور پھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے جلدی سے پوچھا اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اس کہانا نے کہا وہ اس کے صحاب ہیں, کسی کو ابو بکر کہا جائے گا, کسی کو عمر فاروق کہا جائے گا, کسی کا نام عثمان ہوگا, کسی کو شیر خدا کہا جائے گا. کہا بھی کاٹنے والے لوگ کون ہیں؟ کہا وہ ابو جہل اور ابو لہب ہیں, عتبہ و طیبہ ہیں, وہ مکے کے مشرک ہیں. کہا بھی آسمان سے اترتے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا واللہ یعصمک من الناس, اترنے والوں میں کسی کا نام میکائیل ہوگا, کسی کا نام اسرافیل ہوگا, کسی کو جبرائیل کہا جائے گا جو محمد کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اندھیروں کے اندر ایک روشنی کا مینار نظر آیا, اندھیروں کے اندر اجالے کی ایک کرن نظر آئی. میں انتظار میں تھا اب وہ مبارک لمحے آتے ہیں جب وہ مبارک بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے, سحری کا وقت تھا. آج سحری جو آپ نے دیکھی, جس سہانی آپ نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا کہ اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, یہی وہ مبارک لمحات تھے. قرآن بھی فرماتا ہے وَصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ کہ محبوب مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لے. علامہ علوسی بغدادی فرماتے ہیں صبح تو سانس نہیں لیتی. پھر آپ نے کون سی صبح کی قسم ارشاد فرمائی؟ فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر پیدا ہوئے رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی, صبح کا سبیدہ طلوع ہو رہا تھا. کہا جب پیغمبر نے زمین پہ قدم رکھ کے پہلی سانس لی, کہا وَصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, جس صبح تم نے زمین پہ قدم رکھ کے پہلی سانس لی, میں رب اس صبح کی قسم ارشاد فرماتا ہوں, اس صبح کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت تھا, کوہ ابو قبیس سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی, رونے کی آواز آ رہی تھی. سارے کے سارے ہماری ابلیس کے اکٹھے ہوئے. کہا کیا ہوا؟ کہا آج وہ پیغمبر جلوہ گر ہونے والا ہے, جب وہ تشریف لے آئے گا ہماری آسمانوں پہ آمد و رفت ختم ہو جائے گی, دنیا پہ ہمارا قبضہ ختم ہو جائے گا, اسی کی حکومت ہوگی, اسی کی عظمت کا پھریلا ہوگا, اسی کی عظمت کے جھنڈے لہرائے جائیں گے. اور ابلیس کو ہے ابو قبیس پہ بیٹھ کے اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا. یا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا. حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت منہ کے بل زمین کے اوپر گرنے لگے.
काबातुल्लाह बाबे मरवा की तरफ झुकने लगा और फरमाते हैं कि सितारे जमीन के करीब आने लगे और जिब्रील अमीन जन्नत से 3 झंडे लाके मशरिक व मगरिब और काबातुल्लाह की छत पे लगाने लगे। हर तरफ मुबारक बादियों का माहौल था, खुशी के शादियाने बज रहे थे, परिंदे एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे, फरिश्तों की दुआ पे मुबारक बादियों का माहौल था, पूरे खुशियां मना रही थी, जन्नत को सजाया जा रहा था, जमीन को दुल्हन बनाया जा रहा था, हर तरफ खुशी के शादियाने बज रहे थे। कहा आज क्या होने वाला है? अमीर कुरैश फरमाते हैं मैं घबरा गया, सितारे जमीन के करीब, काबातुल्लाह झुक रहा है, बुत जमीन के ऊपर गिर रहे हैं, कहीं इधर शम्स कुविरत व इधर नुजूमुन कदरत, ये क़यामत का मंजर तो नहीं है? फरमाते बस तवाफ कर रहा था, एक लौली बाबे मरवा से दौड़ती हुई आई। जिन्होंने वो मंजर देखा हुआ है कि बाबे मरवा से निकले तो सामने एक बिल्डिंग नजर आती है जिसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। जब उसके पास खड़े होते हैं तो खुशबू के गुल्ले आते हैं, वहां से आज भी दिमाग मुअत्तल हो जाता है। फिर रुक करके सवाल करें नहीं यहाँ से इतनी खुशबू के गुल्ले क्यों आते हैं? कहा तुम्हें नहीं पता ये वो जगह है जहाँ 14 सदियां कबल मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे, वो मेरे पैगंबर की पैदाइश की जगह है। वो बाबे मरवा के बिल्कुल सामने उधर से एक लौटी दौड़ती हुई आई। अमीर कुरैश तवाफ में थे, दामन पकड़ के हिला के झंझोड़ के कहा अमीर कुरैश तुझे मुबारक हो, तेरे मरहूम बेटे के घर में अल्लाह ने एक बेटा पैदा फरमाया है। फरमाते मैं समझ गया सितारे जमीन के करीब नहीं बल्कि आमना की छत को चूमने के लिए आ रहे थे और काबातुल्लाह बाबे मरवा की तरफ नहीं बल्कि बाबे मरवा से आगे आमना की कुटिया की तरफ झुक रहा था। अगर मैं अंदाज फाज़िले बरेली का उधार दूं तो अंदाज यूं बनता है हाजियों और शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों और शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। काबे ने कहा तवाफ करने वालों तुम मेरा तवाफ करो, मैं अभी उसको सलाम पेश करके आता जो मेरी भी इज्जत व आबरू बचाने के लिए आ रहा है, मेरी भी इज्जत महफूज रखने के लिए आ रहा है। हज़रत इकबाल फरमाते हैं बुत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जिब्रील अमीन पढ़ रहे थे जाअल हक फज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हज़रत इकबाल कहते हैं किसकी हैबत से बुत सहमे हुए रहते थे, किसकी हैबत से बुत सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। इधर सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि माहौल ही अजीब था। अभी हजूर मेरे पेट में थे, एक नौजवान चेहरे वाला ख्वाब में आके मुझे कहने लगा आमिना जानती हो तुम्हारे पेट में कौन पल रहा है? मैंने कहा नहीं जानती। कहा मुबारक हो ये मोहम्मद अरबी तशरीफ लाने वाले हैं। फरमाते जाते हुए मैंने नाम पूछा, मैंने कहा अपना नाम तो बता दीजिए। तो उन्होंने हंस के कहा आमना जमाने वाले मुझे आदम के नाम से जानते हैं, कभी आदम आते हैं, कभी नूह नजीबुल्लाह आते हैं, कभी खलीलुल्लाह आके मुबारक देते हैं, कभी ज़बीहुल्लाह मुबारक देते हैं, कभी मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं आमिना तेरी गोद में इमामुल अंबिया आने वाले हैं, कभी नूहुल्लाह मुबारक देते हैं। फिर फरमाती है कि मेरी जब वो आंखें नींद और बेदारी के दरमियान थी, मैंने देखा बुलंद कद्दो कामत की खवातीन मेरे पास खड़ी जैसे अपने मनाफ की बेटियां। मैंने पूछा तुम कौन हो? किसी ने अपना नाम हव्वा बताया, किसी ने मरियम बताया, किसी ने आसिया बता दिया। कहा आमिना तेरी खिदमत के लिए रब ने हमें भेजा। इतनी पकीज़ा खवातीन मेरे पैगंबर की माँ की खिदमत के लिए खातिमा बन के खड़ी हैं। अच्छा फिर ऐसा हुआ कि आवाज आ रही थी कि गुलामों तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, यतीमों सिसकना बंद कर दो, बेवाओं खुश हो जाओ, तुम्हारे सरों पे इज्जत की रिदा आने वाली है। भाई क्या होने वाला है? कहा मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा आने वाले हैं। अच्छा हर तरफ दुरूदों का माहौल था, खुशियां और हर तरफ खुशी के शादियाने। इन खुशी के शादियानों में यार मोहम्मद अरबी ने जमीन के ऊपर कदम रखा और वो 571 ईस्वी थी जब किसी घर के अंदर बेटी पैदा नहीं हुई। आज जिब्रील अमीन जब बेटी पैदा होती है इनका चेहरा शर्मिंदगी से स्याह हो जाता है। आज मेरे पैगंबर ने ज़मीन पे कदम रखना है, किसी शख्स की आंख में आंसू ना आने पाए, किसी की चीख हवा में बुलंद ना होने पाए, हर लब में मुस्कुराहट हो, हर तरफ जो है वो खुशी के शादियाने हो।
मालिक क्या होने वाला है? कहा फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? हर तरफ एक ही आवाज थी, ईद नबवी का जमाना आ गया, ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, हर तरफ खुशियां बहारें चहक रही थी। मेरे पैगंबर जाने बहार बन के कायनात में तशरीफ ले आए। यार ये देखिए ना, जाने बहार बन के आए। ये रबीउल अव्वल, अरबी के अंदर रबी वैसे ही बहार को कहते हैं, अव्वल कहते हैं पहली। रबीउल अव्वल यानी मतलब ये हुआ कि जब खजा का मौसम था ना, पैगंबर ने कदम रखा तो रबीउल अव्वल बन गया। यानी कायनात में पहली बहार आई ही तब है जब कायनात में मोहम्मद अरबी आ गए हैं। अच्छा, जब मोहम्मद अरबी ने कदम रखा जमीन के ऊपर, हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा, ऐसा हुआ वो गुलाम जो अपने आका के जूते को हाथ नहीं लगा सकता था, मक्का फतह हुआ, हुजूर ने फरमाया कहाँ है बिलाल? बिलाल को बुलाया गया, काबे की छत पे खड़ा कर दिया गया। हुजूर के पीछे ऊँटनी पे उसामा बिन ज़ैद सवार है, जो गुलाम ही बड़े गुलाम हैं। जब वो सवार हैं, काबे पे बिलाल को खड़ा किया। अरे हुजूर पैगाम दे रहे हैं, मोहम्मद अरबी की जो नबूवत है वो गुलामों की आजादी का पैगाम लेकर कायनात में आई है। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि वही औरत जिसको इंसान मानने से इनकार किया जाता था, हुजूर फरमाने आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना। फिर हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे बताओ तुमने प्याले पे किस जगह पे लब लगाए हैं? जहां तूने लब लगाए हैं वहां मोहम्मद अपने लब रख के पानी पिएगा। जिस जमाने में बीवी को पांव का जूता तस्वुर किया जाता था, उसी जमाने में आके मेरे पैगंबर ने फरमाया खदीजा तूने मोहम्मद की चादर मांगी है, मोहम्मद की खाल मांगती, मोहम्मद तुझे वो भी अता फरमा देगा। जिस जमाने में बेटी को दफन किया जाता था, उसी जमाने में मेरे पैगंबर के घर में 4 बेटियां पैदा हुई। और फिर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बेटी को चूम के उठाते और चूम के फरमाते बेटियों को दफन करने वालों सुनो, मोहम्मद की बेटी फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा लगती है। उसी जमाने के अंदर जिस जमाने में बहन के बदन से भाई की औलाद पैदा होती थी, उसी जमाने में जब हजरत शीमा हुजूर के दरे दौलत पे आई ना और कबीला हवाज़िन के साथ जंग हुई, तो हजरत शीमा के दरवाजे पे लोग पहुंचे फिदिया लेने के लिए। फरमाया ये फिदिया वापस करो, जिस मोहम्मद की तुम बात करते हो ना वो मोहम्मद मेरा भाई लगता है, उसने मेरी माँ के क्या वो छाती से दूध पिया है, सवारी का इंतजाम करो, मुझे उसके दर तक ले चलो जरा। जब दरवाजे तक आएगा तो तलवारें झुक गई। कहा गवार औरत मालूम नहीं है ये किसका दरवाजा है? यहाँ तो जबरील भी इजाजत लिए बगैर नहीं आते। अपनी चुड़िया से तलवार पकड़ के पीछे झटक दी, कहा पीछे करो। अगर जबरील इजाजत लेके आते तो 1000 बार आए, क्योंकि जबरील इस दर का गुलाम लगता है। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे नबी की गुलाम नहीं, तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। जब ये बात की निगाहें झुक गई, कहा नबी की बहन लगती है, तलवारें हट गई। हुजूर उठ के खड़े हुए और फिर हुजूर के इरशाद फरमाया शीमा कैसे आना हुआ? अर्ज़ के बंदा नवाज ये कैदी छुड़ाने के लिए आई हूँ, और मैं अबू बकर उमर आज मशरे के बगैर कैदी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज मोहम्मद की बहन मोहम्मद के दरवाजे पे आ गई है। जिस जमाने में माँ को बेचा जाता था, उस जमाने में मेरे पैगंबर ने अपना हाथ बढ़ाया, सिदरतुल मुंतहा से जन्नत को खींचा और खींच के माँ के कदमों के नीचे रख दिया। और मैं माँ को बेचने वालों सुनो, इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है। उस जमाने के अंदर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वो माँ को इज्जत अदा फरमाई। अच्छा भी देखिए, सिर्फ मेरे पैगंबर ने खानदानी रिश्तों को इज्जत अदा नहीं फरमाई, बल्कि अगर हम सीरत के पहलू देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने वो ये रिश्ते कब चले गए और कब हुजूर दुरे यतीम पैदा हुए, कब हुजूर की माँ का इंतकाल हुआ, हुजूर की सीरत का खाका मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवे मादर में अभी 6 माह के थे जब हुजूर सल्लल्लाहु के वालिद गिरामी का इंतकाल होता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अपनी वालिदा माजिदा के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ पहला सफर करते हैं। जब हुजूर की उम्र 6 साल है, वालिद गिरामी की कब्र पे हाजिरी देने के लिए अबवा के रेत के टीले आए। मेरे पैगंबर की वालिदा का इंतकाल हुआ और फिर मेरे पैगंबर की वालिदा ने फरमाया बेटा मैं जा रही हूँ, लेकिन वह जिक्री बाप
यौम को निकाला गया। अब सारे कबीले झगड़ने लगे कि कौन है जो हजर अस्वद को लगाएगा। अब हर कबीले की ख्वाहिश थी कि हम लगाएंगे, लेकिन जब हजूर तशरीफ लाए, हजूर ने झगड़ा ही खत्म कर दिया। फरमाया एक चादर बिछा दी जाए, ऊपर हजर अस्वद रख दिया जाए। जब रख दिया गया, फरमाया सारे कबीले वाले आ जाए और चादर का एक एक कोना पकड़ ले। सारे कबीले के सरदारों ने पकड़ा, हजूर ने हजर अस्वद उठा के काबतुल्लाह की दीवार पे नस्ब कर दिया। यार मेरे पैगंबर को अल्लाह ने जब ऐलान नबूवत से कबल ही वो दानिश और वो हिकमत अता फरमाई जो किसी और का हिस्सा नहीं था। 40 साल की उम्र में हजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया और ऐलान नबूवत फरमाते मेरे नबी में 2 नमाजें फर्ज कर दी गई, फजर की 2 रकअतें और असर की 2 रकअतें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल की उम्र के अंदर मिराज शरीफ में तशरीफ ले गए और एक रिवायत के मुताबिक 52 साल की उम्र थी जब हजूर मिराज में तशरीफ ले गए और फिर हजूर को बाकी 3 नमाजें और दे दी गई, मुकम्मल 5 नमाजें हुई। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 52 साल की उम्र थी जब मदीना मुनव्वरा से आए हुए 18 लोगों ने हजूर के दस्ते अक़दस में इस्लाम कबूल किया। इसको बैते उक़बा भी कहा जाता है, उला। और फिर जब वो चंद वो दिनों के बाद वो 72 लोगों ने मदीना मुनव्वरा के रहने वालों ने और इस्लाम कबूल किया। मक्के के अंदर ही अल्लाह ने बहुत ज्यादा जब वो तबलीग मुयस्सर फरमा दी मदीना मुनव्वरा के अंदर। फिर 53 साल की उम्र थी जब हजूर सल्लल्लाहु मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और फिर मदीना मुनव्वरा के अंदर 2 हिजरी के अंदर गज़वा बदर हुआ। फिर तभी वो रोजा भी फर्ज हुआ, ज़कात भी फर्ज कर दी गई। 3 हिजरी के अंदर खंदक हुआ और फिर इस तरह वो सिलसिला चलता रहा। 8 हिजरी के अंदर फतह मक्का हुआ, 9 हिजरी के अंदर गज़वा खंदक हुई और फिर 10 हिजरी को हजूर ने आखिरी खुतबा इज्तिमा की सूरत में जब हजूर की उम्र 63 साल थी हज्जतुल विदा के नाम पे दिया और फिर 63 साल की उम्र के अंदर हज्जतुल विदा के खुतबे के 41 दिन के बाद रबीउल अव्वल शरीफ की 8 तारीख थी और एक रिवायत के मुताबिक 2 तारीख थी जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहे मेज़ात तशरीफ ले गए। वो हजूर की तख्लीक थी और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक हजूर की सीरत है। अच्छा फिर हजूर की सीरत भी देख लीजिए कि हजूर की सीरत कितनी पाकीज़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां गुलामों की इज्जत दी, जहां यतीमों को मुकाम दिया, जहां माँ बहन बेटी को वक़ार दिया है, वहां पे देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों को गैर मुस्लिमों को कैसे हकूक दिए हैं। हजूर की बारगाह अक़दस में कुछ गैर मुस्लिम वफूद हाजिर हुए, हजूर ने मस्जिद नबवी के अंदर उनको ठहरा दिया। जब मस्जिद नबवी के अंदर हजूर ने ठहराया, उनमें से एक शख्स उठा और मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगा। सहाबा उठे उसको रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ जरा, इसको पेशाब करने दो। जब उसने पेशाब कर लिया, हजूर ने फरमाया इसके ऊपर पानी बहा दो। फिर पानी बहा दिया गया, पूरे का पूरा वफद मुसलमान हो गया। हजूर की बारगाह में एक यहूदी आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बकरी का दूध निकाल रहे थे। हजूर से अर्ज करने लगा हजूर दूध पिलाइए। हजूर ने प्याला पेश किया, उसने अर्ज किया हजूर और भी पिलाइए। हजूर ने और भी पेश किया। यार जब वो दस्ते नबूवत से पी रहा होगा तो तब तो निराला ही आता होगा, हजूर के हाथों से नोश कर रहा होगा। हजूर ने और भी पेश कर दिया। जब उसने ज्यादा जरूरत से पी लिया, अब इसको दस्त लग गए, हजूर ने रात अपने बिस्तर में लिटा दिया। ये रात दस्त करके हजूर का बिस्तर नापाक कर गया और सुबह का सदीना तुलू होने से पहले पहले ये निकल गया। अब सुबह फजर के बाद हजूर ये बिस्तर पकड़ के धो रहे हैं। साहब ने अर्ज किया हजूर हमें हुक्म फरमाइए, वरना ये मेहमान मेरा था, इसकी गलाज़त मैं खुद ही साफ करूंगा, इसकी खिदमत मेरा ही हक बनता है। अच्छा ये अपना कोई जरूरी सामान यहाँ पे भूल गया, वापस पलट के आए तो सहाबा दाएं बाएं खड़े हैं और इसका गंदा किया हुआ बिस्तर हजूर धो रहे हैं। इसने कहा तुम्हारा नबी इतना शफीक है? कहा तुमने देखा ही कुछ नहीं है, हमारा नबी इससे भी बड़ा शफीक है। इसने कहा मैं अंधेरे में रहा भी हजूर, बाकी काम बाद में होंगे, पहले कलमा मुहम्मदी पढ़ा के मुसलमान तो कर लीजिए। यार गैर मुस्लिमों को हकूक मेरे पैगंबर ने दिए, यार अक़लियतों को हकूक मेरे पैगंबर ने दिए, गुलामों को हकूक मेरे पैगंबर ने दिए, यार इनका ख्याल मेरे पैगंबर ने किया। आज ये पैगंबर हुस्न जमाल के खाके तराश रहे हैं। यार खाके तो खाकियों के होते हैं, चांद की तरफ मुंह करके थूकने वाले का अपना मुंह ही गंदा हुआ करता है। आज इम्तिहान हमारी हालत का है
آج 12 ربیع الاول ہم خوشیاں کس منہ سے منائیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زندہ ہیں اور 56 اسلامی حکمرانوں ممالک کے جو حکمران ہیں وہ بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. کسی کے اندر جٹ نہیں ہے کہ وہ ڈب کا ایک بیان بھی دے سکے. یار پہلے خاکے شائع کرنے کا کہتے تھے لیکن اتنا رد عمل شدید ہوتا تھا کہ وہ خاکے چھاپنے کی جرت نہیں رکھتے تھے. لیکن یار اب رد عمل بھی وہ نہیں رہا, اب ہماری بات کے اندر وہ وزن بھی نہیں رہا. اور اسی ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہی ہے اور 56 اسلامی ممالک کے حکمران بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں اور فراز کے اندر میرے حسن و جمال پیغمبر کے خاکے شائع کر دیے گئے ہیں اور کوئی شخص ڈب کا ایک بیان بھی نہیں دے سکا. یہ عجب تماشا, اب جینے کا جواز باقی کیا رہ گیا ہے. یہ کائنات میں مقدس ترین ایک ہی ہستی ہے جس کو محمد عربی کہا جاتا ہے. یار اگر ہم محمد عربی کی عزت میں پیرا نہیں دے سکتے پھر ہمیں زندہ رہنے کا بھی جواب نہیں ہے. آج کا دن جو وہ جہاں یوم میلاد ہے وہاں ہم یوم عشق رسول کے نام سے بھی منائیں گے اور آج کا دن ہم کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھیں گے اور میلاد کے جلوسوں میں شرکت کریں گے, میلاد ریلیوں میں جائیں گے تاکہ لوگوں کو ہم پیغام دے دیں. اگر تم پیغمبر کی عظمت گھٹانا چاہتے ہو, ہم اپنے پیغمبر کی عظمت کے نعرے لگانا بھی جانتے ہیں, اپنے پیغمبر کی عزت میں اپنا سر کٹانا بھی جانتے ہیں, پیغمبر کی عزت میں اپنا دان مان دان سب کچھ قربان کر کے پھر بھی ہم کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آج سارا دن درود پڑھتے ہوئے گزاریں گے, سارا دن جو وہ ہم پیغمبر اسلام کی جو وہ ٹیلنٹ کا نقش اپنی چھاتی پہ لگا کے گزاریں گے اور ظالموں تم خاکے تراشتے ہو, تم تو ہمارے پیغمبر کی ٹیلنٹ کے نقش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ساری زندگی جو وہ حضور کی غلامی کے اندر گزار دیں گے اور پھر ہم پیغام دیں گے حضور کی عظمت کے نعرے گلی گلی لگا کے کہ جدا ذکر خود خدا بلند کرے, کیڑا جمعہ جڑا اس نو بند کرے اس سے ذکر دا خود خدا محبت پڑھو لا الہ لا الہ. ہم ایک پورے زور کے ساتھ ہم نعرہ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پرچم کشائی کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے ضیافت کا انتظام ہوگا. پورے زور کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. صدیق سے پوچھا, بولو سارے یا نبی, صدیق سے پوچھا, صداقت بولی, فاروق سے پوچھا, عدالت بولی, عثمان سے پوچھا, صحابت بولی, علی سے پوچھا, سجاد بولی, حسین سے پوچھا تو قرآن بولا, قرآن سے پوچھا سپارے بولے, سپاروں سے پوچھا تو سورتیں بولی, سورتوں سے پوچھا تو رکوع بولے, رکوعوں سے پوچھا تو آیتیں بولی, آیتوں سے پوچھا تو حرف بولے, حرفوں سے پوچھا تو لفظ بولے, لفظوں سے پوچھا تو جملے بولے, جملوں سے پوچھا تو یہ زمین بولی, زمین سے پوچھا تو زمین والے بولے, زمین والوں سے پوچھا تو آسمان بولا, آسمان سے پوچھا تو فرشتے بولے, فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں سے پوچھا تو ستارے بولے, ستاروں سے پوچھا تو چاند بولا, چاند سے پوچھا تو یہ سورج بولا, سورج سے پوچھا تو جبریل بولے, جبریل بولا, جبریل بولا تو ساری کائنات بولی, ساری کائنات بولی. میں مگدی تیری, میں مگدی تیری, میں کونی تیری, آقا میں مگدی تیری, مردے میری جولی, مردے میری جولی, مردے میری جولی, مردے ہم سب کی جولی. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, محمد سے وفات